let's speak about the design of the temple itself. Like we've spoken about the Kashi Tamil Sangamam as well. So we are going to see that in Ayodhya, an amalgamation of North and the South that we're going to see in the temple. Remember the message that the Temple Trust has been trying to give out that this is a mandir for all. So it's going to be an Nagar style main temple. The statue where it will be placed, the platform of it is going to be in the Nagar style, and this is where the Ram Lalla will be kept. Remember, there are going to be two Ram Lallas, one which was originally found, and a massive statue as well that is going to be kept on a platform that can be seen from a distance. So that platform is going to be in the Nagar style, and there are going to be Dravidian style temples at the corners as well. So it's going to have a blend of North and the South. Very, very significant, like we mentioned, a message that this is a mandir that belongs to all people across the country. This is what the devotees have been dreaming for and waiting for over 500 years. And this temple is going to be one for all. So it's going to be a Dravidian style, and the first floor, there are going to be 3 floors that you're seeing here. In the temple is going to be 3 floors, and the first floor is going to be of the Parikrama Marg. That's what it's going to be known as. And as you're seeing here, the style of the temple as well is also going to be a blend of both North and the South. And in these architectural side as well, in the carvings as well, it's going to be the same. Going to see a blend of North and the South. परकोटा, ये परकोटे का कॉन्सेप्ट उत्तर भारत में नहीं है, महाराष्ट्र में भी नहीं है, गुजरात में भी नहीं है, तमिलनाडु में है, केरल में है। ये परकोटा चारों दिशाओं में अगर इसकी लंबाई नाप ली जाए, इट इज 732 मीटर्स। ये दीवार इट इज 14 फीट वाइड। इसके भी चारों भुजाओं पर 6 मंदिर हैं। एक कोने पर सूर्य भगवान का मंदिर होगा, दूसरे कॉर्नर पर शंकर जी का मंदिर होगा, थर्ड कॉर्नर पर भगवती का मंदिर होगा, देवी का, और चौथे कोने पर गणेश जी का मंदिर होगा। ये दक्षिणी भुजा है, यहां हनुमान जी होंगे, यहां पर माता अन्नपूर्णा। But it took more than 492 years for Lord Ram to be re-established in his temple, in his birthplace. We'll tell you all about the architecture of this particular temple. First, there is an outer boundary which is Parkota. It is being constructed, it is sort of protection wall. This Parkota has come from, the concept has come from southern India. Only Vrindavan Rangji Mandir has this kind of architecture. It is of 732 meters, the running length of it. What is unique about this Parkota is the broadness of wall. It is 14 feet wide, more than 4 meters that is. This Parkota is also double stories. First story has been kept for temple, office space, and the upper level is for parikrama. All right, let's get in a word from Gaurav as well. He is speaking to the police officials there as the security arrangements have been put in place. Let's cut across. उद्देश्य है आगामी सभी श्रद्धालुओं का एक सुगम दर्शन हो। इसके अलावा वीवीआईपी सुरक्षा, सुचारू रूप से यातायात चलता रहे, इन सब को लेकर के विभिन्न स्तरों पे हमारे द्वारा डिप्लॉयमेंट की जा रही है। इसमें जनपदीय पुलिस के अलावा मुख्यालय से हमको अतिरिक्त पुलिस बल प्राप्त हुआ है, हमको पीएसी की काफी कंपनी, सेंटर पैरामिलिट्री फोर्स की कंपनी प्राप्त हुई है, हमारी इंटेलिजेंस की टीम्स लगी हुई है, रिवराइन सिक्योरिटी के लिए हमको जल पुलिस, बाढ़ राहत और एसडीआरएफ की टुकड़ियां मिली हुई है। इन सबको लेकर के एक स्ट्रॉन्ग पुलिस अरेंजमेंट बनाया जा रहा है। मैं बता दूं, चूंकि हम लाइव जुड़े हैं, हमारे साथ एसएसपी अयोध्या राजकरण नेहर साहब हैं। चूंकि लाइव ये चल रहा है, रोड शो को लेकर कितना लंबा रोड शो होगा और क्या बीच-बीच में किस तरह से उनके वेलकम के लिए कुछ प्रोग्राम क्या रखे गए, किस तरह का अरेंजमेंट? वीवीआईपी की आगामी विजिट क्योंकि गोपनीय होती है, उसके संबंध में मैं कोई जानकारी नहीं दे पाऊंगा, लेकिन
जो भी कार्यक्रम होगा उसके लिए हमारे द्वारा एक पुख्ता अरेंजमेंट की जा रही है। जो भी बीच में जहां पे हमको अतिरिक्त पुलिस बल लगाना होगा अतिरिक्त पुलिस बल लगा करके उसका निगरानी की जाएगी। 22 तारीख एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है प्राण प्रतिष्ठा का। आपने बताया कि तमाम सेक्टर्स में आपने बांटा है। आम लोगों को क्या एंट्री होगी या नहीं होगी और किस तरह की सुविधाएं क्रिएट की गई हैं ताकि हैसल फ्री जो है वो एक तरीके से लोग आना जाना कर सके? ये हमारे द्वारा पूरी व्यवस्था की जा रही है। 23 जनवरी से जो भी श्रद्धालुगण नव मंदिर में दर्शन करने के लिए आएंगे उनका आराम से दर्शन हो, उनको रास्ते में किसी तरह की कोई सुविधा ना हो, यातायात हमारा सुचारू रूप से चलता रहे। उसके लिए विभिन्न सेक्टर जोन से हमको अतिरिक्त पुलिस बल जो कि जोन के अन्य जनपदों से प्राप्त होगा उनको लेकर के अरेंजमेंट बनाई जा रही है। कितनी फोर्सेज लगभग नंबर्स में डिप्लॉयड होंगी, कुछ एक आंकड़ा अगर आप दे सके? ये आंकड़ा जो है ये 5000 से अतिरिक्त फोर्स जो है हमारी डिप्लॉयड होगी, जिनका मुख्य उद्देश्य जो है सुचारू यातायात, आने वाले सभी श्रद्धालुगण की सुरक्षा, हमारी महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान की सुरक्षा होगा। आम लोगों की एंट्री कब से दर्शन के लिए शुरू होगी, इसके बारे में कोई जानकारी अभी प्रशासन द्वारा दी जा सकती है? 23 तारीख से दर्शन जो है नव मंदिर में सभी जो भी श्रद्धालुगण आएंगे 23 तारीख से नए मंदिर में दर्शन करेंगे। वर्तमान में रामलला विराजमान जहाँ पे है वहाँ पे 20 तारीख तक सब लोग आकर के दर्शन कर रहे हैं। तो चलिए ये एक बड़ी जानकारी हमें मिल रही है कि 23 जनवरी यानी कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होगी और उसके बाद 23 जनवरी से ही जो आम पब्लिक है, आम श्रद्धालु जो है, जो कि रामलला मंदिर के दर्शन करना चाहते हैं नए भव्य मंदिर में, वो दर्शन कर सकेंगे। ये जानकारी जो है एसएसपी अयोध्या ने हमें अभी फिलहाल दी है। और आप देखें तो अभी मैं फिर से तस्वीरें एक बार दिखा दूं, काफी ज्यादा हलचल और सिक्योरिटी यहाँ पर बीफ्ड अप फिलहाल की गई है क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किसी भी मिनट जो है यहाँ पर पहुंच सकते हैं। और एक रिचुअल सा रहा है जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने हैं, 50 से ज्यादा बार वो न सिर्फ अयोध्या पहुंचे बल्कि अयोध्या के विकास को एक तेजी देने की कोशिश की। मैं एक बार यहाँ पर आए लोगों से भी बात कर लेता हूँ। ये बुंदेलखंड के महोबा जिले से लोग आए हैं और ये गांव के लोग हैं, लेकिन इनकी राम में भक्ति है। इन्होंने 21 किलो देसी घी जो है वो राम जन्मभूमि के लिए दिया। क्या कहेंगे और क्यों, कैसे आए आप लोग? जी, कानपुर प्रांत के महोबा जनपद से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सभी स्वयंसेवक हैं। मैं खंड धर्म जागरण प्रमुख पनवाड़ी। तो सभी लोगों का विचार बना तो सभी लोगों के मन में भाव हुआ तो गाय का देसी घी 25 किलो लाए हम लोग। अच्छा जी, तो आप लोगों ने चढ़ा दिया होगा जी। तो एक बार आप लोग से गुजारिश है कि एक बार कम से कम जय सिया राम का नारा तो लगा ही दे। जय श्री राम, जय श्री राम। तो ये बताइए कि बुंदेलखंड के ही चित्रकूट में भगवान श्री राम जो है जाकर ठहरे थे जब भरत उनको मनाने गए थे। बुंदेलखंड के लोगों में कितना उत्साह है राम मंदिर को लेकर? बुंदेलखंद में सभी अभी वहाँ से श्रद्धालु निकल चुके हैं, कुछ पैदल आ रहे हैं, कुछ अलग अलग हिसाब से वाहन से आ रहे हैं। हम लोग जैसे पैदल आए हैं, कुछ दूर वाहन से, फिर पैदल ऐसे होके आए हम लोग। सारे लोग पैदल भी जो है राम मंदिर पैदल भी आ रहे हैं, पैदल आ रहे हैं। अच्छा, आप लोग भी फिर दर्शन करने के लिए दोबारा आएंगे? हाँ, दोबारा आएंगे, हर साल आएंगे हम लोग, हर साल आएंगे। ग्राम धनवार से है जी जी। जो घी लाए हैं आपको 25 किलो यहाँ भगवान के चरणों में अर्पण करने के लिए, ग्राम धरवार ब्लॉक पनवाड़ी जिला महोबा से। हम लोग सर 6 साल से अभी सुंदरकांड चला रहे हैं सभी मंदिर में, श्री राम जानकी मंदिर में जो है। तो सभी भक्ति जैसे इकट्ठे हुए, सबको प्रेरणा भगवान ने दी कि भाई चलिए हमारे दर्शनों के लिए आइए। तो हम लोग सर वहाँ से पैदल चले कुछ दूरी तक। तो चलिए देखिए ये तस्वीर फिलहाल अयोध्या की, लोग पैदल अपने घरों से चल चुके हैं रामलला के दर्शन करने के लिए। और जब रामलला में 23 जनवरी से दर्शन आम लोगों के लिए शुरू हो जाएंगे, तमाम लाखों की संख्या में राम भक्त जो हैं वो राम जन्मभूमि के नए भव्य मंदिर में भगवान राम का दर्शन करेंगे।